Good morning, students. Today's topic was GSM. Myself, Ankur Patne, Assistant Professor in Computer CSIT Department. Today we learn about GSM architecture. So, what do you mean by GSM? And what is the process of GSM? Basically, GSM system, mainly GSM architecture is mainly divided into three parts. First is base station substation, that is also known as BSS. Sometimes it includes mobile station, that is also known as MS. Second is network and switching subsystem, that is known as NSS. Third is operation and support subsystems, that is known as OSS. So in this, first we tell about GSM architecture. In this architecture, you see that this is a mobile station. This mobile station is what is your mobile phone, is the application of mobile station. Okay, there are, in this diagram we see about two mobile stations are there. In this mobile station, they are connected with a line that is known as radio ear, that is known as radio frequency, which is connected with BTS. What is the full form of BTS? Base transceiver stations. Base transceiver stations is a capacity to transmit and receive the signals from the mobile station and forward these signals, execute this process and forward these signals to base station controller, that is known as BSC. This BTS, there are many BTS in a single BSC, and base station controller are connected with OMC, that is known as operating support system. With the help of OMC, it connected with MSC. The MSC stands for mobile station controller or center. These are the three basic keywords which we learn about, which we have to understand in GSM architecture: BTS, BSC, and MSC. Okay. Now, there are many BSCs in a network, but a single MSC are there. Now, BSC connected with OMC with the help of MSC. What is MSC? Is a main station controller. It controls the signals from mobile stations, and it gives the example in HLR, VLR, and authentication center. What is HLR? Home location registers. What is VLR? Visitor location registers. AUC stands for authentication center. बेटा क्या होता है HLR? क्या होता है कि HLR अगर हम बात करें तो मोबाइल स्टेशन वो चीज है जो आपके जेब में मोबाइल फोन से, वो आपका मोबाइल स्टेशन से, ठीक है। आप BTS है तो क्या है कि जो मोबाइल स्टेशन से जिस टावर में आप कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज देयर BTS. देयर आर मेनी BTS इन अ सिंगल BSC. इन भोपाल देयर आर मेनी नेटवर्क टावर्स आर देयर, ठीक है। तो उस BTS के थ्रू आप कनेक्ट होते हो, और एक बेस स्टेशन है जो सारे टावर जिस बेस स्टेशन को रिपोर्ट करते हैं वो BSC. आपके सिग्नल्स वहां से होते हुए OMC की हेल्प से, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से MSC के पास पहुंचते हैं. अब MSC देखता है कि आप किस लोकेशन पे हो. MSC ये तीन प्रकार के रजिस्टर्स की हेल्प से काम करता है, दैट इज नोन एज HLR, BLR एंड ऑथेंटिकेशन सेंटर. HLR स्टैंड्स फॉर होम लोकेशन रजिस्टर्स. होम लोकेशन रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप होमली काम करते हैं. मतलब जैसे अगर आपने सिम ले के रखी है और आपका लोकेशन कोई है, जैसे आप MP के बिलोंगिंग है या UP के बिलोंगिंग है या झारखंड के बिलोंगिंग है या बिहार के बिलोंगिंग है या कर्नाटका के बिलोंगिंग है या महाराष्ट्र के बिलोंगिंग है, तो वो आपका होम लोकेशन रजिस्टर हो गया. ओके, आप उस लोकेशन में होमली रहते हैं, जनरली आप वहां रहते हो, तो वो हो गया. अगर आप HLR से आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो, VLR में जाते हो, या होम को छोड़ के आप किसी भी स्टेट में आप
आपकी सिम एक्टिवेट होती है, दैट इज नोन एज विजिटर लोकेशन रजिस्टर्स। ठीक है, अब एचएलआर के पास क्या क्या काम होता है? एचएलआर के पास आपके सब्सक्रिप्शन से लेके, आपकी सेल की इंफॉर्मेशन से लेके, आपके डेटाबेस को मेंटेन करने का काम है। दीज आर द टू डेटाबेस विच मेंटेन बाय एमएससी, और एज पर रिक्वायरमेंट दे फेचेस द डेटा फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, अब ये क्या क्या प्लेसेस हैं? होम लोकेशन रजिस्टर्स की हेल्प से हम उसको अडॉप्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। ओके, तो होम लोकेशन रजिस्टर्स के पास आपके होमली जो भी सब्सक्रिप्शन है, जैसे आपकी सिम है उसमें कितना डेटा बचा है, आप की कितनी कॉलिंग बची है, आपने कितने मिनट कॉल कर दिया, क्या रेट से कॉल कर दिया, क्या है, इस सारी इंफॉर्मेशन को वो वहां पे स्टोर करता है और उसके पास रहता है। अब वो क्या करता है, ये टेबल वो शेयर साथ में, जैसे एमएससी के साथ में शेयर करता है। और एमएससी में जैसे आप पोजीशन चेंज करते हो, बाई चांस आपकी इच्छा हुई कि आज एमपी से घूम के आप महाराष्ट्र चले जा रहे हो किसी काम की वजह से, तो आप विजिटर लोकेशन पे वहां पे रजिस्टर्ड होते हो। जब आप वहां पे रजिस्टर्ड होते हो विजिटर लोकेशन पे, तो आपके जो डेटाबेस है, जो आपके बिलोंगिंग्स है, वो पूरी की पूरी डेटाबेस को शेयर करता है वीएलआर से। with the help of that database of HLR, it connect and we will call and take the services of from our subscriber। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन सेंटर करते क्या है? ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा आप कॉल करने लायक हो कि नहीं हो, आपका मिनिमम बैलेंस है कि नहीं है, और आपकी सिम एक्टिवेट है कि नहीं है, आपका जीएसएम जो मोबाइल फोन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो डिवाइस प्रॉपर उनके स्टैंडर्ड्स में बिलोंगिंग है कि नहीं है। तो वहां पे वो सारी चीजें ऑथेंटिकेशन सेंटर पे होती है। तो विद दैट हेल्प ये एमएससी हमारा वर्क करता है। और ये जो एमएससी है और जो वीएलआर, एससीआर और ओएमसी के हेल्प से ये वर्क करता है, दैट इज नोन एज नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। ओके क्लास, thank you so much for this class।